Good afternoon, children. Today, let's continue chapter 6 Solids, Liquids, and Gases. This is the fourth part of this chapter, and today we will start from page number 76. So, now let's come to page number 76. On this page, we will know about separation of liquids from solids. So now let's start. We use different methods to separate soluble and insoluble solutes from solvents using different methods. In हिंदी we use different methods. हम कई सारे methods का use करते हैं to separate soluble and insoluble solutes. हम soluble और insoluble solutes को separate करने के लिए कई सारे methods का use करते हैं. From किस में से? Solvents में से. ये solids को different में अलग अलग करने के लिए यानी कि separate करने के लिए कई सारे methods का use करते हैं. Okay? Separation of insoluble substances. Insoluble solids can be separated from a liquid via a process of sedimentation, decantation and filtration. Sedimentation and decantation. Sedimentation is a process of settling down of insoluble solids at the bottom of the container when the solution is left undisturbed. The solid settles at the bottom is called sediment. Sedimentation involves the following steps. Impure water containing insoluble solvent is collected in a container. Okay, the container left undisturbed for some time. When the solid settles down at the bottom of the container is sediment decant and clear liquid present on top of the sediment into another container without disturbing the sediment. Now let's know about filtration. Okay, what is filtration? Children, filtration is the process of removing insoluble solids from liquids by passing the solution through a filter like thin cloth, strainer means sieve or filter paper. The insoluble substances are retained on the filter paper, strainer or thin cloth as residue, while clear water passes through it and gets collected in the empty container kept well. Filtration is a better method of removing insoluble substances than sedimentation and decantation. फिल्ट्रेशन जो होता है वो सेडिमेंटेशन से और डिकेंटेशन से थोड़ा बेटर होता है. अब इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा हिंदी में जान लेते हैं. ओके, देखिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्टिविटी का सहारा लेंगे. ओके, टेक अ ग्लास एंड पोर अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर इनटू इट. किसी ग्लास में थोड़ा सा वाटर लीजिए और उसमें क्या डालना है आपको? मिट्टी डालनी है. ठीक है, ऐसे जैसे ये डाल रहा है. ओके, मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर. फिर आपको इसको मिक्स कर देना है. ओके, यू विल फाइंड दैट द सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. आप थोड़ी देर के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए लीव द ग्लास अनडिस्टर्ब्ड. ओके, ग्लास को बिना डिस्टर्ब किए हुए रख दीजिए. ओके, तो आप देखेंगे सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो ग्लास में सबसे नीचे जाके, है ना, उसकी तली पे, बॉटम पे क्या होंगे? ठहर जाएंगे. ओके, इसी को क्या कहते हैं हम? सेडिमेंटेशन. ओके, सेडिमेंटेशन मेक्स द इंसॉल्युबल पार्टिकल सेटल एट द बॉटम. ये देखो बॉटम पे जाके ठहर गया. ओके, द ग्लास यूज्ड इन द अबव एक्टिविटी हैज insoluble impurities settle down
at the bottom and clean water above. ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो इंसॉल्युबल प्योरिटीज होती हैं वही नीचे जाके ठहर जाती हैं. ओके, जो इंसॉल्युबल होंगी, कैसी होंगी, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. ओके, पिक द ग्लास जेंटली. अब आप ग्लास को बहुत जेंटली उठाएंगे एंड पोर द क्लीन वाटर इनटू अनदर ग्लास केयरफुली. और उस ग्लास में से ऊपर का जो टॉप पे क्लीन वाला वाटर है उसको क्या करेंगे आप, किसी दूसरे ग्लास में उसमें से पोर कर लेंगे. ठीक है, निकाल लेंगे. और नीचे क्या रह जाएगा आपका, जो भी इम्प्योरिटीज होंगी. इसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन. ओके, चलिए अब हम फिल्ट्रेशन को समझते हैं. फिल्ट्रेशन को समझने के लिए भी हमें एक एक्टिविटी का सहारा लेना होगा. टेक अ फिल्टर पेपर, fold it to form a cone. Okay, fit this cone in a glass funnel. Pour the sandy water carefully into the cone. Insoluble substances like sand remain on the filter paper. Because the size of a sand grain is bigger than the holes on the filter paper, and clean water will collect in the weaker capped valve, the funnel. देखिए ये होता है एक कोन. ठीक है, इस कोन में क्या होगा, एक जो पेपर होगा आपका फिल्टर पेपर, उसको लगा दिया जाता है. ओके, और उसके ऊपर से क्या डालना है आपको, जो मिक्सचर है सैंड और वाटर वाला. तो उसमें क्या होगा, जैसे आप घरों में देखते होंगे चाय को भी क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, चाय का भी छान लेते हैं. उसमें से पत्ती चाय की जो होती है वो बाहर निकल जाती है ना, और चाय नीचे ग्लास में चली जाती है, लाइक दिस. ओके, तो आप जब आप इसको इसमें डालेंगे, है ना, जो हमारा मिक्स वाटर है उसको डालेंगे, तो जो सैंड पार्टिकल्स होंगे वो कोन में ही रुक जाएंगे, बाकी प्योर वाटर नीचे ग्लास में पहुंच जाएगा. ओके, तो अब तक तो हमने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करने के बारे में जाना. लेट्स नो अबाउट सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स. ऐसे सॉलिड्स को जो सॉल्युबल हो उनको सेपरेट कैसे करेंगे. We can remove soluble substances from liquid by boiling and distillation. कोई ऐसा सॉलिड जो कैसा हो, सॉल्युबल हो, अगर वो आपने मिक्स कर दिया है तो उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं. उसको अलग करने का दो तरीके हैं, तो बॉइलिंग और डिस्टिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है, किसी भी पानी को हम जब उबालते हैं, है ना, तो उसे गर्म करके उबालने की प्रक्रिया को बॉइलिंग कहते हैं. ओके, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग. इन दिस मेथड द सॉल्यूशन इज हीटेड till all the water evaporates and solute left behind as residue. To separate salt from its solution, we take salt solution in a container and heat it till the water evaporates, leaving behind salt. During this process, water is lost through boiling. देखिए ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है कि जब तक इतना हम गर्म करेंगे पानी के लिए, इतना बॉयल करेंगे, इतना उबालेंगे कि बॉइलिंग होने के बाद में जो वाटर है वो एवेपोरेट होके सारा का सारा उड़ ना जाए. ठीक है, वो वहाँ से सारा का सारा एवेपोरेट ना हो जाए, और पीछे क्या रह जाएगा, उसको एवेपोरेट होने के बाद में सैल्ट. ओके, अगर सैल्ट का हमारा मिक्सचर है, जैसे सैल्ट ही डालेंगे आप, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल चीज़ क्या है पानी में, आप सैल्ट डालेंगे बहुत जल्दी घुल जाएगा. तो सैल्ट को भी कैसे निकालना है उसमें से, तो तरीका बॉइलिंग का है. बॉइलिंग यूज़ करेंगे आप, सैल्ट नीचे रह जाएगा, बाकी जो वाटर होगा वो एवेपोरेट होके उड़ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट डिस्टिलेशन. Distillation. This method is generally used in laboratories to remove soluble impurities from water or any other liquid. ये ऐसा प्रोसेस है जिसको लेबोरेटरीज में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व in this method are: first is impure water is taken in a round water flask connected to a condenser. इसमें क्या होता है, सबसे पहले वाटर कर लेंगे, किसमें, एक फ्लास्क में लेंगे, और उसके बाद में उसको किससे कनेक्ट किया जाता है,
कंडेंसर से, ठीक है। कंडेंसर से जो कनेक्ट होगा उस फ्लास्क में हम वाटर लेंगे जो हमारा इम्प्योर वाटर होगा। हीट द राउंड बॉटम फ्लास्क ऑन हीटिंग वाटर evaporates as water vapor and impurities left behind. The water vapor then reaches the condenser and cools it. Okay. Then after, this water is then collected in another flask attached to the condenser. Pure water collected by the distillation process is called distilled water. So now children, today's class is over and rest of the chapter we will discuss tomorrow. Thank you children.